So welcome to the web classes. I Shravan Kumar welcome you once again to the classes of grammar. Today what we are going to learn is possessive pronoun. In the previous lecture we understood that how we can use personal pronouns, right? So what we are going to learn today will be possessive pronoun. First of all what we need to understand is what is possessive pronoun. होता क्या है possessive pronoun? सबसे पहले हमें वो समझने की जरूरत है, right? So possessive pronoun क्या होता है? It is a word that refers to a specific person, place, thing belonging to a person, place or thing. कोई एक specific व्यक्ति, जगह या चीज अगर किसी दूसरे व्यक्ति या जगह या चीज से रिलेट करती हो या उससे बिलोंग करती हो, उसे समझाने के लिए जो है हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि ये पेन मेरी है, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेन, राइट, दैट इज रिलेटेड टू माइंड और दैट इज माइंड. सो व्हाट आई एम यूजिंग हियर, द वर्ड इज माइंड. Why? Because I want to relate that pen to me. If I am saying if I want to convert it into the sentence, it will be like this pen is mine, right? So here this pen is related to whom? To me. That is why I have what I have used is possessive pronoun mine, right? So here is a simple chart that we can understand how we can use possessive pronoun, right? First of all, what we need to understand, so there are two places in the like in a sentence, in a particular sentence, where we can use possessive pronoun, right? The first like if you can understand, it will be subject and the second will be object. What is the subject and object? You understand that, right? I have explained it in the previous lecture as well, that a subject and object places in a sentence defines the connection between those two things, right? If I am not using those two things, then it will be like a more or less like sentence, right? There will be no meaning of that meaningless sentence, we can say, right? So first of all we need to understand what which kind of possessive pronouns we are using here, right? First of all, that singular pronoun, we can understand singular pronouns, right? So for first person male, what we are using is mine. For female also mine. So it doesn't matter in singular for first person whether it is male or female. हमें ये फर्क नहीं रखना है कि मेल है या फीमेल है. फर्स्ट पर्सन में हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? माइन, राइट? फॉर सेकंड पर्सन इट इज आल्सो योर्स, whether it is male or female. For third person it will differ. For male it should be his and for the female it should be hers, right? For neuter gender it will be its. For both male and female it doesn't matter. ये तो मैटर ही नहीं करता neuter gender के लिए कि मेल है या फीमेल है. प्लूरल की बात करते हैं. अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, राइट, तो मेल हो या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या यूज करना है? ours, right? It doesn't matter whether it is male or female, we will always use ours as possessive pronoun. For second person it is also yours. If you just see, for second person whether it is singular, plural, male, female, it doesn't really matter, we will always use yours, right? For third person we will use theirs for plural. Also for neuter gender it will be used theirs, right? For so we can understand for third person and neuter gender. For plural what do we use will be theirs, right? It is a possessive pronoun we use while we are talking about third person and neuter gender plural, right? And one thing we need to remember, we need to keep in mind, which is you will never find a possessive pronoun near a noun. हालांकि ये फैक्ट है that जेनेटिव इट इज अ जेनेटिव ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. हालांकि हम जानते हैं कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है? एक जेनेटिव होता है. किसका? पर्सनल प्रोनाउन का. अब जेनेटिव क्या हुआ? तो जेंडर डेफिनेशन देना, राइट? एक पॉजेसिव प्रोनाउन किसी भी एक पर्सनल प्रोनाउन को जेंडर डेफिनेशन देता है, राइट? लेकिन फिर भी हम किसी भी नाउन के साथ में किसी पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेवर. ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. लेट मी शो यू अ वीडियो. एक वीडियो देखो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट? कैसे इस्तेमाल जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का किया जाता है. ठीक है, रिपीट. देखो रघु, गीता में लिखा है, कल जो तुम्हारा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे?
अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है? मुझे सुन। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुरदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? आए? छोटी सी बात। प्रेम भाई क्या है? टेक इट इजी, टेक इट इजी। मैं तुझे समझाता हूं। देख, घर की बेटी भी पराई होती है ना। शी हैज टू गो वन डे। इसलिए मैं कहता हूं, कल जो तेरा था आज वो मेरा है। आज जो मेरा है कल किसी और का होगा, समझा? गलत। कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। सो आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा और आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम आगे समझते हैं कि किस तरीके से वो जो है उस वीडियो के अंदर पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है कर रहे थे। राइट, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, तभी हमें अब समझ में आ जाएगा। राइट, सो यहाँ पर देखो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स। राइट, लुक एट दीज पिक्चर्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है माइन इज द बिग वन। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर पिक्चर जो है वो पहले सेंटेंस में एक नाउन का काम कर रहा है और उसी नाउन को दोबारा रिफर न करते हुए सिर्फ जो है डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एक पजेसिव प्रोनाउन। तो व्हाट डज इट मीन? पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमने कैसे किया? पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर माइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो माइन मीन्स माय पिक्चर. What am I talking about is my picture. In the previous sentence we used picture as noun, and in the second sentence we use mine. Mine, that means I'm talking about my pictures. In the same second sentence we can see here is written flowers. Right, flowers is a noun for the first sentence, and in the second sentence I have used possessive pronoun. So what does that possessive pronoun indicate? That indicates my flowers. Right, that indicates what? That indicates my flowers. I'm talking about my flowers. So I hope you have understood that thing. Right, but you might guys having many questions like what are these possessive pronoun and how we are using them, and you guys also for having a single question that where do we use my, your, our, their, his and her, etc. like things. सो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जो है माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर एक्सेट्रा का इस्तेमाल करते कहाँ हैं। तो इससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये होते क्या है। राइट, सो ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। व्हाट आर दोज कॉल्स? दोज आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। राइट, अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है वो भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ द नाउन टू अ पर्सन और अ फ्यू पीपल दैट इज नोन एज पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब अगर हम मान लो किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कोई पेन है, वो पेन की अगर हम किसी पेन की बात कर रहे हैं, वो पेन किसकी है इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सेंटेंस लिखते हैं जैसे दिस इज माय पेन। तो हमने यहाँ पर पेन जो है उसे एलिब्रेट किया, पेन का डिस्क्रिप्शन दिया, वो किसकी पेन है? मेरी पेन है। और यही काम होता है किसका? एडजेक्टिव का। राइट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ adjective. What does adjective indicate? And adjective is a description of a particular noun. Adjective क्या होता है? तो वो एक डिस्क्रिप्शन है किसी एक पर्टिकुलर नाउन का, और वही काम यहाँ पर करता है। वो क्या करता है? किसी एक नाउन को, पर्टिकुलर नाउन को जो है क्या देता है? डिस्क्रिप्शन देता है। वर्ड दैट इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ अ नाउन इज नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितने पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, हर, इट्स, ये सारे जो है पजेसिव एडजेक्टिव्स गिने जाते हैं। इन्हीं पजेसिव एडजेक्टिव्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट समझते हैं हम डिफरेंस कि क्या होता है, किस तरीके से इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर जो है हमने पजेसिव एडजेक्टिव को सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिलेट करते हुए समझाया है। राइट, अब सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे दिया हुआ है क्या? आई। सब्जेक्ट प्रोनाउन में हमने एक सेंटेंस लिखा है आई हैव अ शर्ट। राइट, और सेकंड दिया हुआ है सामने पजेसिव एडजेक्टिव। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माय। अब इसका हमने जो है एक सेंटेंस और लिखा हुआ है माय शर्ट इज ग्रीन। तो हमने पजेसिव प्रोनाउन में ये समझा था कि पजेसिव प्रोनाउन जो है वो अकेले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बिना किसी नाउन के जो है पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव का क्या? तो पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो बिना किसी नाउन के इस्तेमाल जो है नहीं किया जा सकता। राइट, इफ यू कैन सी हियर इट इज रिटन माय शर्ट इज ग्रीन। वी कैन नॉट यूज एनी पजेसिव एडजेक्टिव विदाउट अ पर्टिकुलर नाउन, because an adjective gives a description to a particular noun. Adjective क्या करता है? एक description देता है किसी एक particular noun को।
तो यहाँ पर हम शर्ट की बात कर रहे हैं, शर्ट, तो कौन से शर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम का बात कर रहे हैं मेरे शर्ट की, राइट, माय शर्ट. So that elaborates the definition of shirt, that elaborates the definition of noun, right? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो है किसी एक पर्टिकुलर शर्ट की बात कर रहे हैं, वो शर्ट किसका है, तो मेरा है. So that is why I have written my shirt is green, right? You can see the another example here. You have a book. अगर मान लो आप you का possessive adjective देखोगे तो क्या बनेगा, वो your. So you have a book. Your book is new. I am talking about a book, but whose book is that? It is yours, right? वो किसकी है बुक, तो your book. इसका मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर जो है किसकी बुक की बात कर रहा हूँ, your book, मतलब कि तुम्हारी बुक की बात कर रहा हूँ, राइट? सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव और किस तरीके से पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है. आप सभी लोगों को जो है ये आई होप वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू. मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम. थैंक यू.